discuss the material control second part, that is economic order quantity. Economic order quantity. Economic order economic order quantity, EOQ. Economic order quantity. You will find, as we have discussed earlier, there are three elements of cost. As you know, the material, labor and your overhead. Material, labor and overhead. These are the three elements of cost, that is material, labor and overhead. As you know, 60 to 70% of the total cost of production is consumed by material. 60 to 70% out of total cost of production, it is consumed by material. And 10 to 20% is consumed by your labor. 5 to 10% is consumed by your overhead. So, if there is a slight change in the material cost, there is a large change in the cost of production. Each and every company try their level best to reduce the cost of production. That's why in last class we have discussed ABC analysis. For the proper control of material, it is categorized in three different categories, A, B and C. That is a part of your material control. These are the techniques which is used for control of material. Economic order quantity is also a part of material control, a technique which is applied to control the material. So we are only concerned with the control of material. Once material means the raw material. जब भी हम बात करते हैं मटेरियल का, इसका मतलब है ये रॉ मटेरियल है ना। अगर हम मटेरियल का बात करते हैं तो मटेरियल में दो चीज को हमको ध्यान देना है। आप लोग को मैं बार बार बोलता हूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। If cost is increased, profit is decreased. If cost is decreased, profit is increased. That's why the cost control, material, labor and overhead must be effectively made. Effectively it is made. So once we are discuss about the material, because we are going to control the raw material. मटेरियल बोलने से दो चीज को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट इज परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। आप लोग ध्यान दें, परचेज प्राइस है ना। सबसे पहला तो परचेज प्राइस, कौन सा प्राइस में परचेज करेंगे, और उसके बाद है एसोसिएटेड कॉस्ट। Associated cost. This purchase price is remain same. हम जहां से खरीदेंगे परचेज प्राइस तो सेम रहेगा, बट
परचेज प्राइस सेम रहेगा, एसोसिएटेड कॉस्ट में भी कंट्रोल। क्लियर माय पॉइंट? जब भी हम मटेरियल का बात करते हैं तो दो चीज आता है, एक तो परचेज प्राइस, आप लोग को मालूम है परचेज प्राइस फिक्स करने के लिए हम टेंडर करते हैं, कोटेशन मंगाते हैं, विद द लोएस्ट प्राइस हु विल सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, वी आर चूजिंग द सप्लायर and purchase price is fixed there. So purchase price के साथ हम लोग का कोई मतलब नहीं है, पहले से ही हम लोग इसको फिक्स करके रखें। लेकिन जब कॉस्ट का बात आता है कम करने के बाद, तो we are concerned with the associated cost। किसके साथ हम लोग का रिलेशन है? एसोसिएटेड कॉस्ट के साथ रिलेटेड है। ये एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है? सबसे पहले तो है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एसोसिएटेड कॉस्ट के अंदर में आता है दो चीज। फर्स्ट वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। हम जैसे ऑर्डर देते हैं, ये ऑर्डर देने में भी कुछ खर्चा होता है। मान लीजिए आप कोई किताब खरीदने संबलपुर जा रहे हैं बरगढ़ से, एक किताब के लिए अगर बरगढ़ जाते हैं तो 100 रुपया खर्चा होगा। मतलब एक बार अगर आप बरगढ़ से संबलपुर जाएंगे तो आपका 100 रुपया खर्चा है। क्लियर में पॉइंट? एक किताब लाने के लिए जाएंगे तो भी 100 रुपया खर्चा है, और 10 किताब एक साथ लाएंगे तो भी वो आपका खर्चा उतना नहीं है, खर्चा बढ़ेगा। एक बार अगर 100 है, आप 5 बार किताब लेने जाते हो तो 500 रुपया आपका खर्चा होगा। उसको बोलते हैं हम ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर व्हाटएवर कॉस्ट इज एसोसिएटेड इज कॉल्ड योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर जब हम देते हैं, उस ऑर्डर देने के टाइम में जितना भी एसोसिएटेड कॉस्ट होगा, दैट इज ए पार्ट ऑफ योर परचेज प्राइस और परचेज ऑफ मटेरियल। क्लियर माय पॉइंट? अनदर इज योर स्टोरिंग कॉस्ट और दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, this may be called carrying cost, may be called your storage cost. Clear my point? This ordering cost is also cost per order. Cost per order. We will find out how much is the cost per order. This is called placement cost also. Placement cost also. So ordering is called placement cost also. Carrying cost is called storage cost also. These are the two associated cost which is related to your material. Clear my point? First one is your ordering cost or placement cost. Second one is your carrying cost, or this may be called your storage cost. What is ordering cost? What are the different expenses which is a part of ordering cost? So please write down. First, cost of placing order. Cost of placing order. First one is cost of placing order. Second, cost of transportation. Cost of transportation. Second one is cost of transportation. हम मटेरियल किस में लाएंगे? व्हीकल में ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे। मान लीजिए हम मटेरियल खरीदे चेन्नई में, चेन्नई से अगर बरगढ़ लाएंगे, कैसे लाएंगे?
ट्रांसपोर्ट में, सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो कॉल्ड योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन कॉस्ट ऑफ रिसीविंग गुड्स, कॉस्ट थर्ड वन इज कॉस्ट ऑफ रिसीविंग goods. Cost of receiving goods is also a part of ordering cost. Next, cost of inspection of goods. Cost of inspection of goods. Cost of inspection of goods. Then we are paying sometime taxes, loading and unloading charges, loading and unloading charges, insurance in transit, insurance in goods in transit, goods in transit। अब देखिए जब हम करते हैं तो प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी हम लोग का कुछ ना कुछ खर्चा होता है, कम्युनिकेशन खर्चा होता है, बार बार हम लेटर देते हैं, फोन करते हैं, ये सारा चीज टेंडर करते हैं, ये सारा चीज है ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट से लाते हैं, ट्रांसपोर्ट लाने के बाद कंपनी गुड्स को रिसीव करता है, इंस्पेक्ट करता है, लोडिंग चार्ज देना पड़ता है, अनलोडिंग चार्ज देना पड़ता है। ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट और प्लेसमेंट कॉस्ट। और रिमेंबर वन थिंग हियर, कॉस्ट पर ऑर्डर इज गिवन। मतलब एक बार अगर ऑर्डर करते हैं कितना खर्चा होगा, अगर 10 बार करते हैं 10 बार, मान लीजिए एक बार अगर हम ऑर्डर करते हैं तो 100 रुपया खर्चा होगा, तो 10 बार अगर ऑर्डर करेंगे तो 100 × 10 1000 रुपये। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर के लिए कितना खर्चा होगा, that is always given in the question. If it is single order, then single order cost will be find out. If it is twice order is made, accordingly the amount will be multiplied into 2. अगर 3 times हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मल्टीप्लाई into 3. Like that each and every order will accumulate the cost. Clear my point? That is called ordering cost. Ordering cost always find out cost per order. Clear my point? Then carrying cost or storage cost. जब हम मटेरियल लाते हैं तो कहाँ रखते हैं? एक घर में रखते हैं, नहीं स्टोर में। सबसे पहला तो रेंट का बात आता है, सबसे पहले रेंट का बात आता है। जहां आप रखेंगे मटेरियल वहीं आपको रेंट देना पड़ेगा, वो गोडाउन का इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, इसमें स्टाफ रहेंगे। क्लियर में पॉइंट? रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, स्टाफ का सैलरी देना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी करना पड़ेगा, ये सारा। स्टोर के अंदर में जितना भी खर्चा होता है दैट इज ए पार्ट ऑफ योर कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कॉस्ट ऑफ स्टोर लाइक रेंट, लाइट, clear point? Cost of the storage, cost of handling material, cost of handling material,
handling material, then insurance. Or the safety of the goods in store, fire insurance may be taken. The insurance, then normal loss. Normal loss. Clear the point? Then your store staff, salary, cost of store staff. Cost of store staff, then interest on fund invested, interest on fund invested, interest on fund invested. Clear the point? So these are the ordering costs and these are the carrying costs. So our part is to control the ordering cost and carrying cost. क्यों? हम परचेज प्राइस को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये तो आपका टेंडर कोटेशन जो भी मांगे थे उसमें फिक्स हो गया। अभी कौन सा कॉस्ट है? एसोसिएटेड कॉस्ट। ये एसोसिएटेड कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. So we are concerned with the cost reduction. How cost will be reduced? So our duty is to think about the ordering cost and the carrying cost. ये दो चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल का प्राइस के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते. So, in case of economic order quantity, the cost must be reduced so that overall cost of production will decrease. Once the cost of production is decreased, your profit is increased. Once cost of production is increased, profit is decreased. So, obviously, our object is to reduce the cost of production. Clear my point? So these are the ordering cost and carrying cost. Next we will discuss economic order quantity is find out. Economic order quantity is find out in three. Write down. Economic order quantity is find out by applying three methods. EOQ is find out by applying three methods. Clear my point? EOQ is find out by applying three methods. First one is tabular method. First one is tabular method. First method is your tabular method. Second one is formula method. Second one is formula, and third one is your graphical method. So tabular method, formula method and your graphical method. There are three methods. So first we will discuss the tabular methods. Clear? First we will discuss the tabular method. Under your tabular method, you will find certain assumption is taken into the account. Without that assumption, your economic order quantity is not applicable.
So you will have to take certain assumption. What are the different assumption? First assumption, write down prior knowledge of uses. Prior knowledge uses. Uses means quantity. Uses means your quantity. एक साल में हम लोग को कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल चाहिए उतने ही हम फिक्स करेंगे एक साल में, क्योंकि आवर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट फ्रॉम आइदर जनवरी एंड एंड विद दिसंबर. It may be start from 1st April and end with 31st March. Whatever it may be, yearly how much consumption of material, that is quantity of material required, that is called prior knowledge of uses. Uses means the quantity used. Quantity used. Second is rate remain constant. हम लोग अभी बात किए प्राइस, मटेरियल प्राइस. रेट मीन्स व्हाट? प्राइस. सो rate remain constant. Rate remain constant. Rate means price of material. We assume that it is constant for throughout the year. अगर आप अभी 10 खरीदें, फिर 12 रुपया में खरीदेंगे, फिर 15 में खरीदेंगे, वेरीज करेगा, वहां इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी काम नहीं देगा. काम कहां देगा? If the price of material is remain same throughout the year, then only economic order quantity is applicable. If there is any change in the price, then economic order quantity is not applicable there. Clear? Third assumption is constant ordering cost. Constant ordering cost. Constant ordering cost. मान लीजिए पर ऑर्डर our cost is ₹100. If per order cost is 100, then हर ऑर्डर जितना भी आगे देंगे कोई 100 रुपया भी होना चाहिए. इसीलिए वो बोल रहा है कांस्टेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट मस्ट बी कांस्टेंट वन. इट शुड नॉट बी वेरीज. अगर वेरी करेगा तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एप्लीकेबल नहीं होगा. We assume that ordering cost is fixed and it is constant. Then only economic order quantity is applicable. Next, constant storage cost. Constant storage cost. Constant storage cost. That means these are the four assumptions which is applicable in tabular method or in economic order quantity. Clear my point? So these are the four assumptions. We assume and calculate the things. Clear my point? Is there any doubt? Now we will solve a problem. एक problem को हम कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. क्लियर माय पॉइंट? क्या है? आप एक क्वेश्चंस को लेते हैं और इसको टेबुलर फॉर्म में डालते हैं ताकि आपको समझ में आए. मान लीजिए आपको क्वेश्चंस बोल रहा है एनुअल यूजेस
एनुअल यूजेस ये क्वांटिटी है, एनुअल यूजेस 1600 पीसेस, 1600 पीसेस। एनुअली हमको कितना पीस चाहिए? 1600 पीस चाहिए। अच्छा, एक चीज अगर बंद हो जाएगा तो आप लोग फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे, मैं ऑनलाइन में हूँ, है ना, क्योंकि 40 मिनट्स का टाइम रहता है, 40 मिनट्स निकलते जा रहा है, तो अगर बंद हो जाएगा तो आप दोबारा फिर लगाइएगा। सो एनुअल यूजेस इन क्वांटिटी दैट इज 1600 पीसेस। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट सिंगल ऑर्डरिंग कॉस्ट सिंगल ऑर्डर। अगर एक बार हम ऑर्डर देते हैं तो हम लोग का जो खर्चा होता है ₹100। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹100। क्लियर माय पॉइंट? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दैट इज ₹100। Then storage cost. Then third one is storage cost or carrying cost. Storage cost or carrying cost. आप लोग को मालूम है carrying cost और storage cost is remain same. Then per unit ₹8. पर यूनिट ₹8। एक यूनिट स्टोर करने के लिए पर यूनिट है। रिमेंबर, स्टोरेज कॉस्ट इज गिवन पर यूनिट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज गिवन पर ऑर्डर। सो पर यूनिट ₹800। क्लियर माय पॉइंट? देन material price per unit, material price per unit ₹50। material price per unit ₹50। so this much is given in your question में हम लोग को इतना दिया है। So what is the meaning of economic order quantity? The meaning is that you will economically purchase the product so that cost will be reduced। हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है? हम कितना परचेज करने से कॉस्ट जो है कम से कम होगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब क्या? किस क्वांटिटी में हम ऑर्डर करेंगे ताकि कॉस्ट कम हो। हमको टोटल कितना चाहिए? 1600 पीसेस। हम 1600 पीसेस को एक साथ भी खरीद सकते हैं, कभी 200 करके भी खरीद सकते हैं, 8 बार 100 करके 16 बार भी खरीद सकते हैं। लेकिन हमको ये देखना है कितना लॉट में खरीदने से हम लोग का खर्चा जो है सेविंग होगा, मिनिमम खर्चा किसमें होगा। ये ऑब्जेक्ट है ईओक्यू का। क्लियर माय पॉइंट? ईओक्यू का मेन ऑब्जेक्ट है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मटेरियल शुड बी ऑर्डर्ड टू द सप्लायर सो दैट मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव वन। क्लियर माय पॉइंट? दैट इज द ऑब्जेक्ट। हम लोग कितना एक बार में 1600 भी खरीद सकते हैं, 800 करके 2 बार भी ले सकते हैं, 400 करके 4 बार भी ले सकते हैं, 200 करके 8 बार भी, मतलब डिफरेंट ऑप्शन है। ये ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन हमको कॉस्ट इफेक्टिव होगा ये निकालना है अंडर योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कौन सा परचेज हम लोग के लिए बेस्ट परचेज होगा,
कॉस्ट कहाँ कम होगा और कंपनी के लिए बेस्ट परचेज होगा, ये हमको निकालना है टेबुलर फॉर्म। तो टेबल कितना बनाएंगे, तो आप देखिए ये जो टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा सबसे बेहतर है। पहले नंबर ऑफ यूनिट, कितना नंबर ऑफ यूनिट, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर, कितना बार में हम खरीदेंगे 1600 यूनिट को, इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट, एवरेज कैरिंग कॉस्ट। ये मैं बताऊंगा क्यों हम लोग को एवरेज कैरिंग कॉस्ट निकालने का जरूरत है। एवरेज कॉस्ट, देखिए हमको साल भर में कितना यूनिट चाहिए, साल भर में 1600 यूनिट को हमको स्टोर करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं, एक बार ऑर्डर किए 100 खर्चा होता है, 2 बार ऑर्डर करेंगे 200 होगा, 3 बार ऑर्डर करेंगे 300 होगा, वो तो बढ़ते जाएगा क्योंकि कॉस्ट पर ऑर्डर है। लेकिन स्टोरेज कॉस्ट ऐसा है, मान लीजिए मैं एक साथ 1600 यूनिट मंगा दिया, फिर ये तो इशू होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, नहीं परचेज किए हैं क्यों, ये फिर इशू होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो ये फिर आपका 1500 हो जाएगा, फिर 1400 हो जाएगा, फिर 1300 हो जाएगा, फिर 1200, ऐसा घटते जाए, लास्ट में 0 होगा। मतलब पूरा साल भर स्टोरेज कॉस्ट सेम नहीं रहेगा। क्यों, हम मटेरियल परचेज किए फिर इशू कर देते हैं, इशू कर देने से फिर मटेरियल रिड्यूस हो जाएगा स्टोर में से, तो स्टोरेज कॉस्ट घटते जाता है। तो कभी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ता है, कभी स्टोरेज कॉस्ट जो है घट जाता है, इसीलिए हम एवरेज को लेते हैं। एवरेज क्या है, एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। इसीलिए हम यहाँ एवरेज कैरिंग कॉस्ट को लेते हैं और एवरेज कॉस्ट को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है पॉइंट। सो कैरिंग कॉस्ट हर टाइम हम एवरेज में कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको ये टेबल कैसे बनाना है आप लोग थोड़ा ध्यान दें। मान लीजिए मैं बोला कि बार बार झंझट जाएगा, एक साथ पूरा 1600 पीस खरीद लेते, तो अगर एक साथ हम पूरा 1600 पीस खरीदेंगे तो कितना बार हमको ऑर्डर देना पड़ेगा, एक ही बार ऑर्डर देना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ ऑर्डर 1 है। क्लियर, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। तो हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, इनटू 100 रुपया, एक ऑर्डर में 100 मतलब ये 100 होगा ना, नहीं या बोला है एक सिंगल ऑर्डर का 100 रुपया, तो एक ऑर्डर दिए 100 रुपया के हिसाब से आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 100 रुपया होगा। तो आपका एवरेज कितना होगा, एवरेज आप कितना करेंगे, एवरेज डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज इज इक्वल टू कितना है 1600 डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, तो ये 800 होगा। एवरेज कितना होगा पहला का, ये बोला ना हमें आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस, एज्यूम देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग कितना है 1600 बाय 2, तो कितना हो गया 800, 1600 बाय 2 कितना हो गया 800। थोड़ा ध्यान देना इस चीज को। अच्छा, उसके बाद एवरेज कॉस्ट, हम लोग का कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना दिया है 8, तो टोटल यूनिट कितना है 800, 800 × 8
800 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 6,400 रुपीज 6,400। समझ में आ रहा है? मान लीजिए हम एक सोचे कि एक साथ पूरा 1600 पीस नहीं खरीदेंगे, उसका आधा खरीदेंगे। आधा कितना होगा? 1600 का आधा 800, 800 पीस। मान लीजिए हम 800 पीस खरीदते हैं तो कितना टाइम ऑर्डर करना पड़ेगा? सपोज सेकंड टाइम में बोला कि नहीं 1600 पीस एक साथ नहीं खरीदेंगे और 800 पीस ही खरीदेंगे। अगर 800 पीस खरीदेंगे तो कितना बार आपको ऑर्डर देना पड़ेगा? आपको टोटल खरीदना है 1600 और 800 करके खरीदना चाहते हैं, तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। तो आप यहां देखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर 2। एक ऑर्डर का अगर 100 रुपया है, 2 ऑर्डर का कितना होगा? 200 रुपया। क्लियर? और इसका एवरेज कितना होगा? इसका एवरेज हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 2, 400। क्लियर कोई पॉइंट? अच्छा, एक का दाम अगर 8 है, 4 का दाम कितना होगा? 3,200 रुपीस 3,200। बात समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? एक साथ 800 खरीदना नहीं चाहता, मैं 400 पीस करके खरीदना चाहता हूं, तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा? 1600 डिवाइडेड बाय 400, तो कितना टाइम होगा? 4 टाइम्स। ऑर्डर कितना टाइम होगा? और ऑर्डर का कॉस्ट कितना है? 100। ये टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 400। बात समझ में आ रहा है? आपका इसका एवरेज कितना होगा? 400 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 200 इनटू 8, ये कितना हो जाएगा? 1600। आप समझ में आता होगा क्लियरली आप लोग को, मेरे को लग रहा है ना? देन मान लीजिए मैं सोचा कि 400 भी नहीं खरीदना है, मेरे को 200 करके खरीदना है, तो अगर मैं 200 पीस करके अगर खरीदता हूं तो कितना ऑर्डर होगा? मेरा टोटल चाहिए 1600, 200 करके खरीदूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ऑर्डर 8 बार ऑर्डर हो जाएगा। एक ऑर्डर में अगर मैं 100 रुपया देता हूं, 8 बार अगर ऑर्डर करता हूं तो मेरे को देना पड़ेगा 800। क्लियर? तो ये होगा 200 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 100 इनटू 8 इज इक्वल टू 800 इज इक्वल टू 800। क्लियर? मेरा बात समझ में आ रहा है सबको? मान लीजिए मैं 100 करके खरीदना चाहता हूं, 100 पीस करके, 100 100 पीसेस, तो ये कितना होगा? 1600 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 16 बार इनटू 100, तो ये हो जाएगा 1600। बात समझ में आ रहा है? एवरेज कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 50 इनटू 8, ये कितना होगा? 400। बात समझ में आ रहा है क्लियरली? आप इसके निकालना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 50-50 करके लाना चाहता हूं, 50-50 तो नहीं, मैं 100 के बाद 80 पीस लेना चाहता हूं, 80 पीस लूंगा तो ये कितना होगा? 1600 डिवाइडेड बाय 80 कितना होगा? हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स। 20 टाइम्स, तो 20 इनटू 100, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट 2000। ये कितना होगा? 80 बाय 2 इज इक्वल टू 40 इनटू 8, 320। आप लोग देखिए, ये निकालने का मतलब ये है कि इसमें से हम कैसा खरीदेंगे ताकि इकोनॉमिक हो। देखो, ये एक पॉइंट है जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 800 है और कैरिंग कॉस्ट भी 800। ये एक पॉइंट है
जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 800 है और कैरिंग कॉस्ट भी 800 है। इसका मतलब दिस इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कितना लॉट में खरीदेंगे हम? 200 करके अगर 8 बार खरीदते हैं तो हम लोग के लिए इकोनॉमिकल है। क्यों इकोनॉमिकल है? देखिए यहां अगर पूरा सब देखेंगे तो सब में टोटल कॉस्ट जो है वेरीज का, यहां ज्यादा हो गया टोटल कॉस्ट, है ना, यहां भी ज्यादा हो जाएगा। यहां पे अगर आपको और एक कॉलम निकालना है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां आप देखेंगे यहां भी 800 है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट ओसी। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट is equal to carrying cost। ये टेबुलर फॉर्म में हम निकाल सकते हैं which purchase is beneficial, cost effective one। आप देखिए अगर 200 करके हम 8 बार खरीदते हैं तो हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 800 हो रहा है और कैरिंग कॉस्ट भी 800 हो रहा है। दोनों कॉस्ट बराबर है, तो ये हम लोग के लिए बेस्ट इकोनॉमिकल परचेज होगा। सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थ्रू टेबुलर फॉर्म, थ्रू योर टेबुलर फॉर्म। क्लियर माय पॉइंट स्टूडेंट? आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि 4th सेमेस्टर का भी करना है, तो आप में जो जितना भी सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं आप थोड़ा निकल जाए।